जब आप इतना अपनी बैचलर्स में और अपने उसमें इन्वेस्ट कर देते हो, सो इट्स रियली डिफिकल्ट टू गो बैक. I don't know the exact reason, but I got rejected for University of Canberra. हालांकि I had straight A's in my levels and everything like that. ये एक event था. तो 7-8 लड़के शलवार कमीज में बाहर खड़े हुए तो इतना सेकंड रात थी. सेकंड रात को जो है मुझे वो हिट हो गया था. नहीं तो मैंने वही पहला सवाल पूछा था कि यार अगर मैं वापस जाता हूँ तो पैसे कितने रिफंड होंगे. और तभी हम शायद शुरुआत में जब जॉब्स करते हैं आके हम थोड़ा स्ट्रगल करते हैं क्योंकि हमें आदत नहीं है और हमें इस चीज का एक्सपोजर है ही नहीं. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू मुसाफिर. मैं आपका होस्ट दानिश साकिब और आज मेरे साथ होस्ट करेंगे फरहान शेख. अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? तो गाइस आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो है साहिल कुमार एंड ही इज़ वर्किंग एज अ पर्सनल बैंकर हियर इन एडिलेड. तो हाउ आर यू साहिल? Assalamu alaikum. First of all, guys, thank you so much for the very warm welcome. Thank you. Congratulations on your startup. I think you guys are doing a wonderful job. Thank you. Thank you. नहीं, please. Pleasure is all ours. Yes, Thank you so pleasure is much. ours. तो साहिल, सबसे पहले जब आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे थे उससे पहले की ज़रा हमें बताएं स्टोरी कि क्या सीन था, पाकिस्तान में क्या करते थे, प्लान कैसे बना ऑस्ट्रेलिया आने का? Yeah, so बड़ी exciting story है. Just like every other A-level student, जब मैंने graduate किया तो I think especially for business students जो है वो top priority होती है. I want to get into LUMS, I want to get into IBA. So back in 2016-17 जो है वो SATs होते थे and to get into LUMS जो है you had to score a very high grade for SATs. As well as for IBA उनका 600 English का cut off होता था और 600 उनका maths का cut off होता था. So my first SAT attempt was terrible. Same. Terrible. मैंने भी किया है. और I think because वहाँ का माहौल इस तरह होता है, it's so fast paced. Yes. Terrible attempt. But मैंने जब दूसरा attempt दिया तो मुझे लग रहा था कि मेरा हो जाएगा. If not LUMS IBA तो हो ही जाएगा. And I've done well. But जब result आया तो I think I had 610 in English and 590 in maths. 10 मार्क्स से रह गया. I was shattered because कोई कह रहा था ज़ेबस चले जाओ, कोई कह रहा था कहाँ चले जाओ, and मेरा दिल नहीं मान रहा था. Because I was a music student as well, so I decided कि यार I should follow my passion और music करते हैं. And I wanted to go into NCA, which is National College of Arts. लाहौर में जो है, it's really good. It's an amazing place to go, especially for media sciences and stuff. So I spoke to my dad and was like, I want to get into NCA और मैं फॉर्म मंगवा रहा हूँ और मैं इस तरह कर रहा हूँ, उस तरह कर रहा हूँ. और तो just like any normal parent would say कि म्यूजिक के अलावा and it's your passion, you should have something to fall back on. So we came up to a conclusion कि okay, it's like बाहर जाओ, डिग्री करो एक दफ़ा so that you have something to fall back on. और once you get the exposure, डिग्री पूरी करके वापस आ जाना and then do whatever you want to do. Like okay, sounds like a plan to me. And this is back in 2017. Never went back. Yeah. Continued with my bachelor's, started working. Or I think music जो है वो, it will always be my passion. But I think वो thought जो था to convert it into a profession changed after I got the exposure. And I especially think जब आप इतना अपनी बैचलर्स में और अपने उसमें इन्वेस्ट कर देते हो, so it's really difficult to go back. इतने पैसे लगा देते हो तो फिर मुश्किल होता है. पैसों का भी it's okay, it's your passion. टाइम लगा देते हो और especially when you go to a foreign country to study, I think आपका perception बहुत change हो जाता है with time. And this is exactly what happened with me. So since you said कि आपने SAT दिया, तो obviously LUMS के लिए IB के लिए वो होता है, तो like ऑस्ट्रेलिया तो SAT इतना नहीं होता, right? उनका USA का ज़्यादा SATs का होता है. तो like what make you think to come into Australia? Why not USA and Canada? So मेरा एक my very old friend, also a family friend, was in Australia. So पता पड़ता रहता था कि he's doing this in Australia, he's doing that in Australia. और हम 3 cousins थे, same age group, same phase of life, and we decided कि यार चलो बाहर चलते हैं अब, you know. क्या कहाँ चलना है, क्या करना है, जिस तरह एक टीम डिसाइड करता है अपने दोस्तों के साथ बैठ कर.
तो वी सेड ओके यार, वो इतना अच्छा कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में, ही इज डूइंग सो वेल, व्हाई नॉट ऑस्ट्रेलिया। तीनों हाँ, साथ नहीं चलते सही हैं, और तीनों साथ होंगे तो अच्छी जर्नी भी रहेगी, मज़ा आएगा। दैट्स हाउ आई बीन पॉइंटेड टू ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज वी हैड अ लॉट ऑफ फैमिली फ्रेंड्स बैक इन कैनबरा, सो वी डिसाइडेड कि हम लोग कैनबरा जाएंगे। और हम सब ने कैनबरा अप्लाई भी किया, बट I don't know the exact reason, but I got rejected for University of Canberra. हालांकि I had straight A's in my levels and everything like that. मेरे academic records बहुत amazing थे, but I got rejected. तो like अब मैं क्या करूँ? So a childhood friend reached out to me. He was in Adelaide. मुझे पता पड़ा है कि तुम ऑस्ट्रेलिया ट्राई कर रहे हो. So come to Adelaide, and you know it's nice. And he gave me all the necessary basic information needed to choose for a city, and hence the reason why I'm chose to come to Adelaide. To Adelaide. तो जैसे कि बताया कि फिर आप तीनों एक साथ आए या अकेले आए थे आप? नहीं, सो एक का कैनबरा में हो गया। हाँ। सॉरी, एक ब्रिस्बेन गया पहले, and then he moved from Brisbane to Canberra, and the third one came 6 months after I came to Australia. And he came to Adelaide as well? No, he went to Brisbane. He went to Brisbane. And then he moved to Canberra as well. Okay, तो तीनों अलग अलग हो गए। तीनों अलग अलग, बस वो दोनों साथ हो गए, वो दोनों कैनबरा में। हाँ, चलो अच्छा। नहीं तो जब वहाँ से आ रहे थे, क्या सिचुएशन थी इमोशनली? लाइक रोए तो हो गए? Yeah, to be very honest, नहीं, I was confident. अच्छा, थोड़ा पैनिक मोड ऑन था, बिकॉज आप घर से दूर जा रहे हो, किस तरह होगा, क्या होगा, यूनी है, ये है, वो है। पैनिक मोड जरूर था, बट आई थिंक रोना जो है वो पाकिस्तान में नहीं होता। वो जब आप पहले लैंड करते हो ऑस्ट्रेलिया में, जब हर चीज़ आपको केओस लग रही होती है, आई थिंक रोना तब आता है। नहीं सही बात नहीं, वो तो सही। हाँ, उस टाइम पे ये होता है कि यार मैं बाहर मुल्क जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, मैं बाहर, थोड़ी थोड़ी खुशी भी होती है, एक्साइटमेंट और फेयर का वो मिक्सचर जो होता है ना, फैमिली से दूर होने का थोड़ा सा वो भी होता है कि अच्छा पार्ट ये था कि माय कंसल्टेंट लिंक्ड मी टू समवन who was traveling on the same date as well. Contacted कि मैं भी जा रहा हूँ, और you know what dates have you booked your flights for? Let's do it together. हाँ, जबरदस्त यार, you have someone to talk to. हाँ, नहीं, तो हम टच में थे, बट हम एयरपोर्ट पे मिले थे, और हम when we traveled together. हाँ, तो वहाँ से जब आप आ रहे होते हो ना कि यार मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, अब ये होगा, वो होगा, बहुत सारी चीज़ें, आप बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो जब यहाँ पे लैंड किया है, वो कौन सी चीज़ थी विच हिट यू लाइक फर्स्ट, लाइक? यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना नहीं हुआ था, बिकॉज मुझे जो है वो काफ़ी अच्छा गाइड कर दिया गया था वहाँ से। मैं बताऊँ मुझे क्या चीज़ लगी थी सबसे पहले? जब मैं लैंड हुआ था ना एडिलेड में, तो मैं देख रहा हूँ यार सन्नाटा ही है बिल्कुल, कुछ भी, मतलब जब हमारी कराची से फ्लाइट उठती है, लाइटिंग लोग पहले तो लोग बाहर होते हैं, एक नहीं, वो तो आप एयरपोर्ट के बंदे के 10 लोग नहीं, वो तो एयरपोर्ट के बाहर होता है ना। मैं ऊपर से बात कर, जब मैं प्लेन से देखता ना विंडो से नीचे, तो मुझे लग रहा था कि मैं मतलब किसी डेजर्ट में आ गया हूँ। कुछ भी नहीं है, पूरा बैरन। एग्जैक्टली, समझ रहे हो? तो मुझे तो वो चीज़ बड़ी हिट की थी। बिल्कुल। अच्छी बात यही थी कि क्योंकि मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन थी और मैं दोस्त था, तो आई वाज़न्ट स्केयर्ड। I was going to meet someone who I've known for years and years. तो इतना मुझे नहीं था, मुझे पता था मैं उसके घर जाके रहूँगा, और मेरी उससे वो बॉन्ड है वैसे ही। और तो जब हम एयरपोर्ट पे लैंड हुए, तो उस दिन कोई सिंधी कम्युनिटी का इवेंट था, तो 7-8 लड़के शलवार कमीज में बाहर खड़े हुए, तो इतना मुझे पाकिस्तान क्यों भेज दिया वापस? आपको लगा मेरे साथ वो स्कैम तो नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया लेके जा रहे हैं, दुबई ले गए हैं? बट इतने सारे लोग थे, तो इतना नहीं फील हुआ, इतना पैनिक मोड ऑन नहीं हुआ था पहले दिन पे। तो बट आई थिंक जो मेरी सेकंड रात थी, तो सेकंड रात को जो है मुझे वो हिट हो गया था। नहीं, तो मैंने वही पहला सवाल पूछा था कि यार अगर मैं वापस जाता हूँ तो पैसे कितने रिफंड होंगे? ये होता है वैसे, सब यही पूछते हैं, पैसे कितने रिफंड होंगे? 25% कटेगा। Exactly. और मैंने जो है वो जो है घर पे मैसेज कर दिया था कि आई एम कमिंग बैक, मुझसे नहीं होगा ये, बिकॉज लोगों की बातें सुन के, कोई लड़का शिफ्ट पे जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, यूनी है, 2-2 शिफ्ट है दिन में, तो मतलब मैं तो वापस आ रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा। तो तभी मुझे यही बोला था कि भाई अब तो वापस आना है, ठीक है, कम बैक, बट अब क्योंकि चले गए वहाँ पे, कुछ टाइम एक्सप्लोर तो करो, 1 महीना घूम कर ही आ जाओ, घूम फिर के ही आ जाओ। बट वो 1 महीना टर्न इनटू इयर्स। इट वाज अ हुक एक्चुअली। वही है, मैं इसको ट्रैप बोलता हूँ, समझ रहे हो यार? मतलब सोच के ये आते हैं, पढ़ाई खत्म करेंगे, बैक टू पाकिस्तान, बिल्कुल, और फिर आप उसके साथ उसमें फंसते रहते हो। बट यार, आई थिंक आई वाज वेरी फॉर्चुनेट to find people that motivated me and supported me so much. I think the group of people I was living with and connecting with, so helpful and supportive. So I think वो आपको बहुत push मिलता है. And when you move to a different country, I think all you need is a push.
you need some support, you need some motivation, and you should be good to go. बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये इस पे हमने पहले भी बहुत बात की है कि अगर मतलब एक बिल्कुल अनजान कंट्री में आप गए हो, वहाँ पे आपको कोई एक रात सोने के लिए भी दे देना बहुत बड़ी चीज होती है। फिर आपको गाइड करने वाले, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों को भी गाइड करते हैं। वरना तो आपको पता है, जब हम पाकिस्तान में होते थे ना, तो मैं यहाँ पे ये पाकिस्तानी इन ऑस्ट्रेलिया, और इनको कुछ लोग हैं जिनको मैं मैसेज करता था कि यार क्या सीन है, वो बोलते थे नहीं आना भाई। खुद 10 साल से ऑस्ट्रेलिया में मुझे बोलते थे भाई ऑस्ट्रेलिया नहीं आना, इट्स अ वेरी बैड प्लेस। समझ रहे हो? तो मैंने अपने एजेंट को बताया, मैंने कहा यार मैंने इस बंदे को मैसेज किया तो मुझे बोला है कि यार नहीं आना, बहुत बुरा है, ये है वो है। तो उसने कहा, उससे पूछा वो कब से वहाँ पे, मैंने कहा 7 साल से। बोलता आपने उसको बोला नहीं कि यार आप वापस क्यों नहीं आ जाते? Exactly. जो मुझे मना कर रहे हो। बिल्कुल 100%। सो टॉकिंग अबाउट, जैसे आपको अपने दानिश भाई ने बोला कि क्या हर्डल्स आई यहाँ पे आते हुए, तो मुझे ये था कि थोड़ा सा ये भी पूछूं कि कल्चरल शॉक किस किस बातों पे लगा जब ऑस्ट्रेलिया आए थे? आपको नई क्या चीज़ें लगी, या क्या ऐसा लगा कि ओह ओके यार ये तो पाकिस्तान में था? यार आई थिंक जो मेरा पहला शौक था वो था जब मैं पहले दिन यूनी जा रहा था। सही। तो मैंने बोला था नहीं मुझे कोई ड्रॉप नहीं करे, मैं I'll be okay, कोई ऐसी बात नहीं है। तो सुबह को जब निकला तो एक तो बारिश पड़ी थी, तो हम तो वैसे ही बारिश में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई रोड कैसे क्रॉस हबदड़ी हो जाती है थोड़ी सी। तो ये भी नहीं पता था गूगल मैप पे बस कैसे पता पड़ेगी, क्या होगा। नॉट दैट कि मुझे किसी ने हेल्प ऑफर नहीं की थी, मैं मतलब गूगल मैप सीखा, मुझे कुछ शर्म आ रही थी कि मैं पूछूं कैसे क्या बस कैसे ढूंढते हैं। तो बस जो पहली बस आई उसमें चढ़ गया। बारिश पड़ी थी, पहली बस आई उसमें चढ़ गया। तो मुझे था कि चलो यही सिटी ले जाएगी, इतना पता था कि हाथ दिया था बस को आप? नहीं रुकी, बस स्टॉप वो घर के बिल्कुल अपोजिट था। तो मैं बस स्टॉप पे खड़ा हो गया, लोग खड़े थे जो सब चढ़े, मैं भी उनके साथ ही चढ़ गया बस में। और लकीली जो मेरे साथ बस में जो बैठी थी, तो उनसे ऐसे मैंने बातचीत थोड़ी शुरू की। तो उन्होंने बोला कि मैं यूनिवर्सिटी में टीचर हूँ। मैंने जबरदस्त, मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मतलब अब जहाँ ये उतरेंगी मैं भी उनके साथ ही उतर जाऊँगा। मुझे नहीं पता था यूनिवर्सिटी के 3 कैंपस हैं। और मैं डिप्लोमा में आया था। मेरा फर्स्ट ईयर वाज सेबिट, which is South Australian Institute of Business and Technology। वो यूनिवर्सिटी से डिफरेंट, exactly। I think वो सिटी ईस्ट का ही एक पार्ट है। यस। तो फर्स्ट ईयर वो था, बाकी 2 साल यूनिवर्सिटी के थे। तो मुझे नहीं पता था कि सिटी ईस्ट सिटी वेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है। एंड आई एंडेड अप फॉलोइंग हर। वो सिटी वेस्ट पे उतर गई, मैं भी उनके साथ सिटी वेस्ट पे उतर गया। और यूनी के ऐप में सिर्फ लिखा होता है GB बिल्डिंग 02, समथिंग अलोंग दोस लाइंस। GB बिल्डिंग क्या है, शर्म आ रही है, किससे पूछूं, क्या पूछूं। और जिससे पूछूं यूनिवर्सिटी कहाँ है, वो बोले सामने यही बिल्डिंग है। तो उसके बाद मैंने अपने फॉर्म्स वगैरह में देखा कि भाई कोई दूसरा नाम है यूनी का, क्या है। तो उसमें आया था भाई सेबिट। तो मैंने एक बंदे से पूछा कि भाई ये कहाँ है यूनी ये। उसने बोला मैं वहीं जा रहा हूँ, चलो फॉलो मी। तो एंडेड अप गोइंग विद हिम। क्लास में आधा घंटा लेट पहुंचा, बट समझ में नहीं आ रहा है, अजीब अजीब जो है वो लेक्चर्स चल रहे हैं क्लास में, किसी से बात नहीं है। हम तो क्योंकि बैक इन पाकिस्तान आप कहीं भी जाओ कोई ना कोई जानने वाला मिल ही जाता है। निकल आते हैं तो you don't feel odd one out। आपको लगता है कि चलो यार कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूंगा। बट वो पहला कल्चरल शॉक था कि भाई बस कैसे मिली, क्या हुआ, क्लास में क्या पढ़ा रही हैं, क्या असाइनमेंट्स हैं, पोर्टल क्या है, किस तरह है पोर्टल। आई नो, यस। अच्छा, यस यू आर राइट के बस मतलब गूगल चलाना आई बिलीव ऑस्ट्रेलिया में ही सीखा है एज अ स्किल, हाउ टू यूज गूगल। वो पहला कल्चरल शॉक था। बाकी तो क्योंकि द पीपल आई वाज लिविंग विद जो है वो सारे अपने ही लोग थे, तो कोई भी ऐसा मेजर कल्चरल शॉक नहीं लगा। खाना भी वही घर का था और हर चीज वही थी। तो आई थिंक एक शॉक पहला मुझे वही लगा था। उसके बाद आई थिंक आई जस्ट डेल्व्ड इनटू इट। वो देखा क्या कहते हैं कंट्री में फ्री भी वो परेशान होने का, लोग मुफ्त चीजें दे रहे हैं, क्या हो रहा है, कबाड़ी वाला का है। तो बस एक आई थिंक वही कल्चरल शॉक था मेरा मेजर। नहीं, ये तो यूनी का आपका पहला दिन हो गया ना, तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे पहुंचे तो टेंशन तो स्टार्ट हो गई होगी कि यार फीस नहीं तो कम से कम लिविंग तो निकालनी है। तो उसके लिए फिर कैसे क्या किया? आई थिंक मुझे जो सबसे पहली वो एडवाइस यही मिली थी कि भाई CV बनाओ। मुझे CV कैसे बनेगी, क्या लिखूं CV में कि A लेवल्स में ये सब्जेक्ट पढ़े हैं, O लेवल्स में ये सब्जेक्ट पढ़े हैं, लैंग्वेजेस क्या। फिर किसी से CV बोरो की थी उनकी, तब पता पड़ा कि भाई इस तरह एक्सपीरियंस बताना होता है अपना और इस तरह करना होता है। CV बनाई, अपनी CV देना शुरू की इधर उधर, बट नो लक। कंट्री पे जॉब्स अप्लाई करना शुरू की एंड जो है वो इंडीड, सीक और चलते चलते यूनी से निकल गया आधा घंटा जो है वो अपना
इस पे दे दिया कि आधा घंटा जो शॉप सामने आ रही है सब पे सीवीज ड्रॉप कर दिया। और थोड़ा सी आई थिंक थोड़ी हेजिटेशन भी हो रही थी कि यार कैसे जाके बोलूँ कि मुझे जॉब चाहिए, और किस तरह उनको बताऊँ कि क्या बोलना है जाकर, किस तरह शुरुआत करनी है, क्या करना है। बट आई थिंक स्लोली 4-5 सीवीज देने के बाद आपको वो हेजिटेशन खत्म हो जाती है, बिकॉज यहाँ का कल्चर ऐसा है, तो ऐसी कोई बात नहीं। वही ना, क्योंकि जिधर से हम आते हैं ना पाकिस्तान में, हमें ये नहीं होता कि यार आपने जाना है जॉब मांगनी है, हमें तो होता है यार यूनी खत्म करेंगे फिर जॉब्स अप्लाई करेंगे, हमारे माइंड में वो चल रहा होता है। यहाँ पे तो आपको पता है 14 ईयर्स के होते हैं बच्चे, वो काम करने लग जाते हैं। हाँ नहीं डेफिनेटली, बिकॉज दे हैव टू पे रेंट टू देयर पेरेंट्स। यस, वो अपने पेरेंट्स को रेंट पे करने हैं तो वो काम करना लेकिन मेरे ख्याल में ये बेहतर भी है क्योंकि यू आर अहेड ऑफ अदर्स। मतलब हमारे पाकिस्तान में जब आप बैचलर्स करते हो ना, फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होती है, काम करना आप स्टार्ट करते हो, तब आपको पता चलता है कि प्रैक्टिकली दुनिया है कैसी। बट यहाँ पे ये कि यार ये लोग पहले ही काम करना शुरू कर देते हैं, दे आर अहेड ऑफ अस। बहुत अच्छी बात है, 10 साल हमसे पहले चल रहे होते हैं। बिल्कुल। इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी यार, यू एक्सपीरियंस, प्रोफेशनलिज्म, humbleness यार, how to treat with, yes definitely, you learn financial management, there's so much you learn. You learn how to work under someone. क्योंकि हमारे तो खान होते हैं ना जो यूनी में पढ़ रहे होते हैं, बाहर निकलते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं क्यों काम करूं इनके लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए मेरे जैसे सांस ले रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, I think very important, and I don't see this happening in Pakistan in the near future. I think ये ट्रांसफॉर्मेशन आने में जो है वो बहुत टाइम लगेगा। थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन आई है पाकिस्तान में कि लोगों ने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। yes that's what I was saying, बट देन अगेन मैं फिर से कहूंगा कि फ्रीलांसिंग इज अ गुड थिंग, बट मनी वाइज ठीक है। मैं फिर भी इस हक में हूँ कि ठीक है आप बिजनेस करो, आप अपना काम करो, लेकिन सिर्फ चंद साल 2 साल यू शुड वर्क इन एन ऑफिस, यू शुड वर्क अंडर समवन, बिल्कुल, ताकि आपको पता चले कि हाउ टू टेक प्रेशर, हाउ टू वर्क फॉर समवन, हाउ टू टॉक टू यू द अथॉरिटीज, और आपकी डेडलाइंस होती है, वो बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। और तभी हम आई थिंक शुरुआत में जब जॉब्स करते हैं आके हम थोड़ा स्ट्रगल करते हैं क्योंकि हमें आदत नहीं है और हमें इस चीज का एक्सपोजर है ही नहीं, तभी हम स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम पे पहुंचने की आदत नहीं है। एग्जैक्टली। मुझे किसी ने यहाँ पे बहुत एक अच्छी बात सिखाई थी कि अगर किसी इंटरव्यू में आप 15 मिनट पहले पहुंच जाते हो ना, तो 40% तो आपको जॉब वहीं मिल गई है। डू यू नो कि आपने मेरे पहले मैकडॉनल्ड्स के इंटरव्यू में ये बोला था कि फरहान 15 मिनट पहले चले जाना, और यू आर सो राइट कि वो खुद मैनेजर कह रहा था कि अच्छा तुम आ गए। जरूरी है। He was the one who told me कि यार जाके वो 15 मिनट पहले पहुंचा। हाँ नहीं, I learned it from someone else, I passed it on, you will pass it to someone else। वही बात है ना, like action speak louder than words। अगर आप वहाँ पे बैठ के इंटरव्यू में उसको बोल रहे हो कि I'm very professional, I'm very punctual, और आप इंटरव्यू में ही लेट हो, doesn't make sense। बिल्कुल सही। तो फिर पहली जॉब कहाँ लगी आपकी? यार पहली जॉब बर्गस्ट्रोनॉमी। Okay, how was the experience? मैं जिस वीक आया था आई स्टार्टेड वर्किंग देयर फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। वाह नाइस। ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने तो कभी काम किया ही नहीं है, हमें तो इतना एक्सपोजर होता ही नहीं है कि जो है वो किस तरह उस चीज़ को नाइफ किस तरह यूज़ करनी है, कस्टमर से किस तरह डील करना है। और आई थिंक शुरुआत में जब आप स्पेशली फ्रंट ऑफ द हाउस काम कर रहे होते किसी रेस्टोरेंट पे, बिकॉज वी आर नॉट वेरी हैबिचुअल ऑफ द एक्सेंट, हमें समझ में नहीं आता वो क्या ऑर्डर कर रहे हैं। तो जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था और मैं बीच में 1-2 ऑर्डर्स ले रहा था, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो ऑर्डर क्या कर रहा है और कौन सा बर्गर बोल रहा है, और जो स्लैंग्स होते हैं चूई और इस तरह की चीज़ें हमें तो पता ही नहीं होती हैं, बट इट टेक्स अ वाइल। तो फर्स्ट कपल डेज तो समझ में ही नहीं आया कुछ, और मुझे लग रहा था मैं काम कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बट इट गॉट बेटर विद टाइम। ट्रेनिंग की, स्टार्टेड वर्किंग दे, आहिस्ता आहिस्ता बात भी समझ आना शुरू हो गई, काम भी समझ आना शुरू हो गया। अच्छा जलन हो रहा था पढ़ाई के साथ, क्योंकि पहला प्राइमरी फोकस तो पढ़ाई ही था, क्योंकि पढ़ाई पे अपना पूरा ध्यान देना है, अपने पूरे आवर्स देने पढ़ाई पे, पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बिल्कुल। सो यूनी के साथ अच्छा जलन हो रहा था। आई थिंक आई यूज्ड टू वर्क इन द इवनिंग आफ्टर 5, तो सुबह यूनी और शाम को जॉब, वाज सेलिंग इन प्रीटी वेल। बस जॉब यूनी मतलब बहुत मुश्किल होता है। तो कैसे मैनेज कर रहे थे, लाइक पढ़ाई को और जॉब को दोनों साथ लेके कैसे चल रहे थे? यू हैव टू प्रायोरिटाइज के मतलब यू कांट वर्क 7 days, यू कांट स्टडी 7 days। और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का इतना अच्छा जो है वो इन्होंने स्टडी इन्वायरमेंट बनाया हुआ है कि आप इजीली मैनेज कर सकते हो। इतना कोई आप पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, इतना प्रेशर नहीं होता पढ़ाई का। आई डोंट नो अबाउट other fields, but especially for business, I think
बहुत इजी होता है मैनेज करना अगर आप अपने असाइनमेंट्स टाइम पे करिए, नॉट लीविंग इट टू द एंड, और आप विथ टाइम एवरी वीक अपने कोर्स को पढ़ रहे हो, यू नो व्हाट्स हैपनिंग, आपके असाइनमेंट्स कब ड्यू, आपके क्विज कब ड्यू, तो बहुत इजी हो जाता है मैनेज करना। हाँ, मतलब इतना स्टडी लोग, इतना वर्कलोड नहीं होता कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान। हाँ, आई बिलीव कि जैसे आपने कहा कि आपने ओ लेवल्स किया, NA लेवल्स किया, तो जो ओ लेवल्स और A लेवल्स का वैसे मैं आपको व्यूअर्स को बताना चाहूँ कि जो तरीका है वो एंड में एग्जाम है, एंड देन उसके बाद एवेल्यूएशन होती है। पर जब आप यहाँ पे आते हो तो यूनिवर्सिटी जो है वो इट्स लाइक कांस्टेंट असाइनमेंट्स, ये वो 100%। तो वो भी कभी कभी होता है कि अच्छा असाइनमेंट है यार, आज मैं कर लेता हूँ जल्दी जल्दी, एंड देन उसके बाद वो इट्स लिटिल बिट इजियर फॉर एज कम्पेयर टू एकदम से कुछ भी लाइक मैसअप हो गया। नहीं, टू ऐड मोर टू इट, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, बिकॉज क्योंकि मैंने OA लेवल्स किया था, तो जब मैंने यहाँ पे पढ़ना शुरू किया तो मेरे लिए वो चीज़ें बहुत इजी थी, क्योंकि मैंने वो सब तो पढ़ा ही हुआ था, बल्कि उसके कहीं आगे एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ी हुई थी, तो इतना मुझे था कि यार आई डोंट नीड टू पुट इन सो मच एफर्ट इनटू माय यूनी, बिकॉज मैंने पहले चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अगर मुझे कोई असाइनमेंट बनाना भी है तो मुझे कोर्स बुक खोल के फिर से तैयारी नहीं करनी है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, सो इट मेड इट वेरी इजी। सही। और ये तो पढ़ाई और जॉब हो गई। जैसे आपने सबसे शुरू में बोला कि यार म्यूजिक आपका पैशन था, शौक था, उसको साथ लेके चल रहे थे। आई सो यू परफॉर्मिंग इन फ्यू इवेंट्स, तो उसका क्या चल रहा था साथ पीछे? यार 100% मैं अपना गिटार साथ लेकर आया था, और मुझे था कि मैं इफ नॉट प्रोफेशनली एटलीस्ट मेरा अपना पैशन है, तो इट्स अ फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन। तो काफ़ी जो है वो यहाँ की जब पार्टीज वगैरह होती थी, इवेंट्स होते थे, तो मैं उसमें 100% परफॉर्म करता था, और सब बहुत अप्रिशिएट भी करते थे। आई थिंक एवरीवन दैट आई नो ऑफ हैज़ प्रमोटेड मी सो मच इन देयर फ्रेंड सर्कल्स, एंड इट्स अ नेटवर्क, सो बहुत अच्छा रहा है वो भी। आई मेट समवन फ्रॉम पाकिस्तान, वी मेट थ्रू अ म्यूचुअल, ही वाज अ म्यूजिशियन एज वेल, सो बड़ा जल्दी हम कनेक्ट हो गए, एंड देन वी मेट अ फ्यू अदर पीपल जो इसी इंडस्ट्री से कनेक्टेड थे, सो वी फॉर्म्ड पाकिस्तानी बैंड कॉल्ड ज़िक्र। अनफॉर्चुनेटली वो ज़्यादा चली नहीं, बट हमने 1-2 कॉन्सर्ट्स ओपन किए थे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था लोगों का। बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि आप पढ़ाई भी कर रहे हो, आप जॉब भी कर रहे हो, यू हैव टू मैनेज सो मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम, तो उसको टाइम देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। टू कैरी योर पैशन विथ यू गेट्स डिफिकल्ट। Yes, you can spare half an hour at night and play the guitar or sing, but to carry it professionally gets a bit difficult. I think मेरी इस पूरी जर्नी में 2-3 साल कहीं ऐसे रहे जहाँ पे क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें मैनेज करनी पड़ी थी, तो वो कहीं बैक सीट पे चला गया था, और वो फिर बैक सीट पे ही रह गया। टिल डेट इफ़ आई गेट अ चांस थ्रू आउट माई डे, तो मैं को ज़रूर कोशिश करता हूँ कि यार इट्स अ फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन। सो इफ ज़रूरी नहीं है कि मैं स्टेज पे परफॉर्म करूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं 50 लोगों के सामने गाऊँ। इवन इफ आई एम डूइंग इट बाय माई सेल्फ, आई एम हैप्पी विद इट। ज़बरदस्त। नहीं, बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे इतनी चीज़ें चल रही होती हैं, मतलब अकेले पढ़ाई और जॉब को ही मैनेज करना मुश्किल है, और साथ में जब आपका शौक भी और दिल भी हो तो फिर तो मज़ीद मुश्किल हो जाता है। तो आपकी कितने 2 साल की पढ़ाई थी? 3 साल की बैचलर्स किया आपने? बैचलर्स किया, बैचलर्स इन बिजनेस, मेजरिंग इन मैनेजमेंट। तो उन्हीं 3 साल आप यूनी तो जा रहे थे ऑब्वियसली, तो उसके दरमियान आप बर्गर सोनी में ही काम कर रहे थे, आपने जॉब चेंज की, स्विच की, कुछ ट्रांजिशन लिया था आपने? सो उस टाइम पे उबर ईट्स नया लॉन्च हुआ था एडिलेड में। सो आप भाई के साथ जो है वो जिस तरह हम जॉब्स में बोलते हैं बडिंग, shadowing, I was shadowing आप भाई for the first couple of days कि उबर किस तरह चलती है, राइड किस तरह एक्सेप्ट करनी होती है, बैग लेके जाना पड़ता है, क्या बोलना है अंदर जाकर, ऐप कैसे चलती है। याद आ गया असल में, सॉरी, पहली राइड मेरी आपके साथ थी। इट्स अ चेन, बिल्कुल इट्स अ चेन। लेके गए, सिखाया कि ऐप कैसे चलती है, किस तरह होता है, ऑर्डर किस तरह उठाते हैं, और किस तरह डिलीवर करें। भाई डिलीवर करते हुए थैंक यू बोलना है, और प्लीज बोलना है, सॉरी बोलना है, और इसी तरह बस जस्ट यू शुड नो हाउ टू नेविगेट द ऐप, और बाकी काम तो ऐप खुद ही करती है। तो जिस दिन शिफ्ट नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था, सो 1-2 घंटे उबर कर ली, और जिस दिन शिफ्ट है उस दिन शिफ्ट कर ली, बाकी तो पढ़ाई पे टाइम। ये उबर जो है ना, मेरे ख्याल से हर इंटरनेट जब आई है ना, ये एडिलेड में 17 में आई थी, 2017 में, उसके बाद से या तब तक जो लोग थे ना, मेरे ख्याल से हर बंदे ने उबर ईट्स जरूर चलाई है। तो ये एक सवाल जो है ना, मैं हर उबर ड्राइवर से पूछता हूँ कि कैसा लगता था जब रेस्टोरेंट वाला बोलता था कि जाके बाहर वेट करो? यार इससे बड़ा एक फनी इंसिडेंट रिलेटेड है।
तो जब हम उबर करते थे तो मैं और एक दो और दोस्त हम जब उबर करते थे तो हम फ़ोन पे कनेक्टेड होते थे एक दूसरे से कि कहाँ बिजी है, कहाँ पे आए, क्या करें, और टाइम भी पास हो जाता था बात करते करते। तो मैंने एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट से एक पिज़्ज़ा पिक किया और उसको अपने बैग में डाल दिया, और मुझे पता ही नहीं था मैंने पिज़्ज़ा उल्टा बैग में डाल दिया। और मैं खुशी खुशी उसके कस्टमर के पास पहुंचा, बैग भी लेकर गया कि वो देखे कि मैं अच्छी सेफली उसका खाना लेकर आया। उसको बैग से निकाल के दिया, थैंक यू भी बोला, जो जो खाया था वो सारे स्टेप्स मैंने फॉलो किए। उल्टा पिज़्ज़ा पकड़ा दिया उसको पिज़्ज़ा दे दिया और उसने उस वक्त पिज़्ज़ा खोला तो उसने बोला ये क्या है, पूरा कि उसकी पूरी जो टॉपिंग थी वो तो उसके ऊपर कार्डबोर्ड पे आ गई थी, लो नीचे रह गया। उसने बोला ये क्या, वो बड़ा गुस्सा हो गया था। अब मुझे उस वक्त समझ भी नहीं आया कि क्या करना है, तो मैंने उससे अपोलोजाइज किया। रेस्टोरेंट के सामने ही था, 2 गली आई थिंक 2-3 स्ट्रीट्स पीछे होगा। मैं फिर उस रेस्टोरेंट पे गया, मैंने उस वही पिज्जा लिया, अपने पॉकेट से पे किया, उसको जाके वो पिज्जा देकर आया। नाइस। और मुझे नहीं पता था कि आप उबर में बता सकते हो कि डैमेज हो गया आइटम, और उसके बाद उबर कस्टमर से खुद ही लेजन करती है और हमें जरूरत नहीं पड़ती। बट नया था, पता ही नहीं था। चलो इट वाज एन एक्सपीरियंस, सीखा कम से कम आपने कुछ। नहीं, इट वाज वेरी नाइस ऑफ यू कि कम से कम आप गए और लेके आए। एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता था कि किस तरह करना है, क्या करना है। मुझे याद है कि मैंने जब पहली वो किया था इसके साथ ही मैंने कहा कि नहीं मुझे बैग में डालनी है, मैं भाई हर चीज सेम करूंगा। वो मैकडॉनल्ड्स से ली थी ड्रिंक्स का पैकेट, बैग में रख दिया था। अच्छा। ड्रिंक्स बहाते में गया उसके बाद। नाइस। मैकडॉनल्ड्स से याद आया, आपने कुछ टाइम मैकडॉनल्ड्स में भी काम किया था। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग देयर? वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आई थिंक आफ्टर 6 months मुझे मैकडॉनल्ड्स में जॉब ऑफर हो गई थी, तो मूव टू मैकडॉनल्ड्स। इंटरव्यू दिया अपना, मैकडॉनल्ड्स की टिपिकल जो यूनिफॉर्म होती है, और आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क इन मैकडॉनल्ड्स बिकॉज आई हैड हर्ड सो मेनी गुड थिंग्स फ्रॉम यू बिकॉज यू वर अ मैनेजर एट मैकडॉनल्ड्स। यस। तो उसमें मुझे ये था, आई जस्ट वांटेड टू लर्न कि किस तरह कम्युनिकेशन होती है, हाउ डू you work in big companies, you have to work with managers, you have to be nice to your colleagues. और क्योंकि बचपन से इतना मैकडॉनल्ड्स खाया था तो कभी ये भी था कि ये बनता कैसे है। वैसे यहाँ पे आके ये रियलाइज नहीं होता कि हमारे पाकिस्तान में मैकडॉनल्ड्स जो है वो एलीट लोगों का खाना है। बिल्कुल। और यहाँ पे जो है जो जंकी होते हैं ना वो जाके मैकडॉनल्ड्स खाते हैं क्योंकि $1-2 का हैमबर्गर है। बिल्कुल। तो इंटरव्यू दिए और ट्रेनिंग की वहाँ पे, और आई थिंक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। I've learned so much from McDonald's कि you don't always get the best managers. मैनेजर हर तरह के हो सकते हैं, but you learn how to deal with them. Because I was an overnight crew. तो overnight में काम करना और McDonald's के processes follow करना, और कितनी उन्होंने अंदर automation की हुई अंदर to make things easier for customers as well as their staff. Everything is so I think it's so organized कि उनका स्टॉक से लेकर उनके फ्रायर्स, उनकी ग्रिल्स, एंड देन यू ऑल्सो लर्न how to interact with customers, how to deal with your managers, और किस तरह उसके साथ अपनी पढ़ाई मैनेज करनी है। अगर आपकी रात को शिफ्ट है और आप सुबह को आपकी यूनी है तो आपको किस तरह मैनेज करना है। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो ऑब्वियसली आपने लाइक पार्ट टाइम जॉब्स किए, जैसे बर्गरस्टॉन में हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, ऊबर चलाई, तो ऑब्वियसली अभी आप जैसे काम कर रहे हो इन योर प्रोफेशन, तो हाउ वाज योर ट्रांजिशन फ्रॉम पार्ट टाइम टू योर प्रोफेशन? वो कैसा लगा, जहाँ क्या चेंजेस थी? आई थिंक इट वाज वेरी स्मूथ, वेरी स्मूथ, माशाल्लाह, इट वाज वेरी स्मूथ। जैसे ही मेरी, आई थिंक आई वाज इन माय लास्ट ईयर ऑफ यूनी when COVID struck. Oh, okay. So I think वो तो हम सब के लिए इतनी, आई थिंक पूरी दुनिया के लिए वो इतनी एक नई चीज़ थी कि we didn't know how to respond to it. यूनी ऑनलाइन हो गई थी, और हर चीज़ जो है वो इतनी चेंज हो गई थी, सो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इसको रिस्पॉन्ड किस तरह करना है। एंड ऑल्सो बिकॉज वो पूरा साल तो कोविड था ही, आई थिंक कोविड 3 साल तक था इन ऑस्ट्रेलिया। तो व्हेन आई ग्रेजुएटेड इट वाज पीक कोविड एट दैट पॉइंट 2021, और जब पूरी दुनिया में रिफॉर्म्स हो रहे थे हाउ कि हम किस तरह जो है वो कोविड को टैकल करें, और उस टाइम सारी मेजर जो कंपनीज थी वो हायर नहीं कर रही थी। एवरीवन वाज लुकिंग एट ले ऑफ्स बिकॉज ऑपरेटिंग कॉस्ट इतनी हाई हो गई थी। सो आई स्ट्रगल टू गेट अ जॉब फॉर आई थिंक 4 months,
And उसके बाद I landed a job in Avis Budget Group as a sales consultant, which I was very fortunate enough. I think it was the right place, right time. और I started working at Avis Budget Group as a sales consultant. बहुत funny incident है. So उस टाइम पे कोविड पीक पे था, बट बिकॉज ऑस्ट्रेलिया लॉकडाउन में था तो इंटरनल फ्लाइट्स चल रही थी, कुछ स्टेट से ऑपरेट कर रहे थे. तो एविस बजट बीइंग अ कार रेंटल कंपनी, उनको ये लगा कि अब हमारा टूरिज्म वापस आने वाला है, सो वी नीड टू हायर मोर स्टाफ बिकॉज काफ़ी ले ऑफ्स हो गए थे कोविड में और वो लोग वापस नहीं आ रहे थे, सो दे वांटेड मोर स्टाफ, हेंस द रीज़न व्हाई दे हायर्ड मी. उसके बाद स्टार्टेड ट्रेनिंग दे, 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई. एंड देन कोविड की लेयर, वो जो पीक थी वो वापस आ गई, फ्लाइट्स बंद हो गई. हाँ, यस, एक सेकंड वेव आई थी. सेकंड वेव आ गई, एग्जैक्टली. तो अब तो वो परेशान हो गए कि हमने तो स्टाफ भी हायर कर लिया, मेरे साथ 2 और भी लोग थे, और ये तो फिर से वेव आ गई. अब इतने लोगों को, क्योंकि एयरपोर्ट पे ऑफिस थी तो उनके सिक्योरिटी मेजर्स भी बहुत हाई थे कि आपको इतने स्क्वायर मीटर पे इतने ही लोग होने चाहिए, और फेडरल पुलिस होती थी वहाँ पे, तो इतने लोग तो वो ऑफिस में भी नहीं रख सकते थे. ना हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते थे क्योंकि हम तो इतने क्वालिफाइड थे नहीं उनके हिसाब से, क्योंकि हमने ट्रेनिंग अभी स्टार्ट की थी. बिल्कुल. तो क्योंकि टिपिकल शिफ्ट 8 घंटे की होती है, तो उन्होंने ये फिर इंट्रोड्यूस किया कि आप सिर्फ 4 घंटे दिन में काम करेंगे, बट यू गेट पेड फॉर द होल शिफ्ट. क्या ही बात है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? इससे अच्छा क्या हो सकता है? सो आई यूज्ड टू गो ओनली फॉर 4 hours, नाइस, और आई यूज्ड टू गेट पेड फॉर 8 hours. बट एट द सेम टाइम मुझे यही हो रहा था कि चलो ठीक है, पैसे आ रहे हैं, 8 घंटे के पैसे आ रहे हैं, बट आई एम लूजिंग दैट पीस ऑफ लर्निंग. बिल्कुल. If there are no customers, I don't learn. There's no training. You're just getting the money. You're just getting the You're not money, learning anything. which was not my priority. First job after you graduate is आप अपनी सारी जो है वो, you want to put your theoretical knowledge into practical, or you want to you show your potential कि आप कितना perform कर सकते हो. But if there are no customers, you can't do anything. तो 4 घंटे जॉब पे जाना था और उसके बाद वापस घर. And it was COVID, so you can't do much. हाँ, नहीं, नाइस, ऑब्वियसली. तो चलो एज अ प्रोफेशनल तो हमने पूछ लिया, तो आपकी पर्सनल लाइफ कैसे चेंज हुई फ्रॉम द स्टूडेंट टू गोइंग टू प्रोफेशनल? Yeah, it was stressful. अच्छा, it was stressful. Because I think ये जो transition होती है from a student to a professional can be very stressful sometimes. उसका मेन रीजन ये है कि जब आप स्टूडेंट होते हो तो आपसे कोई इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं, बिकॉज यू आर स्टडिंग. तो ये तो अभी पढ़ रहा है. I'll second you on this. बिल्कुल, जब आप स्टूडेंट होते हो ना, आपके पास एक्सक्यूज होता है. Exactly. कुछ भी हो गया, मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ, I'm studying. बट जब आप यूनी खत्म कर लेते हो तो एवरी डे दैट यू डोंट हैव अ जॉब, आपको इतना जो है वो स्ट्रेस आउट करती है वो चीज़ कि मेरे पास जॉब नहीं है, 2 हफ्ते हो गए जॉब नहीं मिली, 3 हफ्ते हो गए जॉब नहीं मिली, अभी तो 6 महीने बाद दूसरा बैच ग्रेजुएट हो जाएगा. सो अभी तो मैं 500 लोगों से compete कर रहा हूँ, बट आफ्टर 6 months I'll be competing with maybe 1200 स्टूडेंट्स. और किस तरह होगा, क्या होगा? तो आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी स्ट्रेसफुल. और आई थिंक हर बंदा इस फेज से गुजरता है. कुछ लोग दे आर फॉर्चुनेट इनफ टू गेट अ जॉब एज सून एज दे ग्रेजुएट, तो वो ट्रांजिशन ईजी हो जाती है. बट एज सून एज आपका वो स्टूडेंट के बाद वो स्टूडेंट वाला फैक्टर हट जाता है, इट गेट्स वेरी स्ट्रेसफुल. तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल थी कि वो 3-4 महीने जब तक जॉब नहीं मिली थी तो क्या करना है, क्या करूं. और कोविड था तो पता था कि कोई हायर भी नहीं कर रहा है, तो कोई रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा था. बट देन थिंग्स फेल इनटू प्लेस बाय देमसेल्व्स. इट डज. मेरे ख्याल से एक तो जॉब की टेंशन होती है, और ऊपर से ये कि आपको ये भी सोचना होता है कि यार अब क्या वो आपका टाइम होता है डिसाइड करने का कि यार मैंने यहाँ पे रुकना है, क्या करना है, मैंने वीज़ा एक्सटेंड करना है, मैंने टीआर लेनी है नहीं, मैंने पीआर लेनी है नहीं लेनी, क्या आपके गोल्स है फ्यूचर. क्योंकि फिर आप फैमिली से भी, कुछ लोग बोल रहे होते हैं वापस पाकिस्तान आ जाओ, कुछ आपको सजेस्ट करते हैं कि यार यहीं पे रुक जाओ. तो वो मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है आपको, और डिसाइड करना मुश्किल होता है आपने क्या लेना है, क्या ख्याल है. और चलो ये तो हो गई आपकी, जब आप एविस में काम कर रहे थे. तो अभी माशाल्लाह यू आर वर्किंग इन वेस्टपैक एज अ पर्सनल बैंकर, तो उसके बारे में कुछ बताओ. क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने सेम फील्ड से पढ़ा हुआ है और नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं कि बिजनेस की और अकाउंटिंग की जॉब्स बहुत कम है ऑस्ट्रेलिया में, ये सुनने को मिलता है हमें. तो वो बताएं कि जॉब आपने कैसे सिक्योर की और कैसे चल रही है जॉब, आर यू हैप्पी विद इट? यार, सो मेरी ट्रांजिशन एविस इस तरह हुई थी कि आफ्टर द फर्स्ट ईयर वर्किंग एट एविस, आई वाज ऑफर्ड अ प्रमोशन एट एविस एंड आई वाज
offered a role of a senior sales consultant where you have to manage a team of Nice. 10 to 15 sales agents. And then you use your strategies and sales techniques to help them, coach them to increase sales of the business. So मैंने वो role accept किया, worked as a senior sales consultant for 6 months. Oh. So luckily क्या हुआ कि क्योंकि मैं वहाँ 2 साल काम कर चुका था, मुझे ज़्यादा ग्रोथ नज़र नहीं आ रही थी वहाँ पे. आई वॉज वेरी टेंस्ड कि मैं क्या करूँ, मैं रोल स्विच करूँ, मैं जॉब स्विच करूँ, मैं क्या करूँ. सो मेरी एक कॉलीग थी, वो एविस में आई थिंक 20 साल से काम कर रही थी. और एक दिन हम ऐसे ही जो है वो काम कर रहे थे, तो शी वाज लाइक के व्हाट आर योर करियर गोल्स एंड व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, उस तरह. एंड उसने मुझे बोला था कि यू आर टू स्मार्ट फॉर दिस जॉब. एंड one of my friend works as a big position in Westpac. Are you open for other opportunities? Well, yes, definitely. Why not? हाँ. तो मैंने अपनी उस रेज्यूमे उसको फॉरवर्ड की, उसने अपनी दोस्त को फॉरवर्ड की, और बात यहीं खत्म हो गई. बार बार पूछना भी अच्छा नहीं लग रहा था कि क्या फॉलो अप करूँ, कि आपने उसको भेजी नहीं भेजी, किस तरह हुआ. और देन वन डे सडनली आउट ऑफ द ब्लू मुझे कॉल आई कि Westpac Group से कॉल आई कि I don't know if this is out of the blue for you or not, but I've just received your resume and would you be open for an interview? Nice. Yeah, sure. So why not? So first interview, second interview, and then they offered me a role. जबरदस्त. And since then you have been working as personal banker या पहले? Yes, as a personal banker, nice. as a personal banker. जबरदस्त. तो जॉब्स के मामले में माशाल्लाह you have got a vast experience. तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, क्या आप बताना चाहोगे, क्या चीज़ करें कोई प्रोफेशनल जॉब लेने के लिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हमारे व्यूअर्स को? यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है आपकी अपनी फील्ड. आई थिंक स्टिक टू योर फील्ड एंड कीप अप्लाइंग जॉब्स. आई थिंक अगर आज मेरी कोई ईमेल्स देखे तो आई माइट हैव ओवर मोर देन 200 रिजेक्शंस इन माय ईमेल, बट यू जस्ट हैव टू कीप अप्लाइंग एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अप्लाइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. स्ट्रक हो जाती है, बट यू जस्ट हैव टू कीप ट्राइंग. आई थिंक दिस इज द की हैक टू इट. यू जस्ट हैव टू कीप अप्लाइंग. कहीं ना कहीं हो जाएगा. But you just can't lose hope. And then also Australia में तो, and I think it's all over the world, के references play a very important part. So connect with people over LinkedIn, और कहीं पे आप काम कर रहे हो या doesn't matter आप मैकडॉनल्ड्स पे काम कर रहे हो तो किसी को आपके लिए प्रोफेशनल कोई एरिया नहीं खुल सकता. You never know. So connect with people, talk to them. You never know आपका कनेक्शन कहीं से कहाँ. You never know, मतलब आपको ये पता नहीं होता. क्योंकि मैं एक ऐसे बंदे को जाता हूँ who was driving टैक्सी, और उसे टैक्सी में जो है एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का CEO उसकी टैक्सी में बैठा था. he picked him up from casino, और उसने उसको सिविल इंजीनियर की रोल ऑफर किया. Nice. There you go. He was driving टैक्सी. I believe LinkedIn में भी बहुत सारे लोग अपने प्रोजेक्ट्स बताते हैं कि यार we did this, भले वो स्मॉल भी हो, बिकॉज वही प्रोजेक्ट आई बिलीव लिंक्डइन पे अपलोड करना चाहिए कि अच्छा व्हाट आर यू डूइंग, लाइक व्हाट प्रोजेक्ट यू आर ऑन टू इट, सो दैट इफ अनदर कंपनी CEO और वट एवर द हायरिंग एजेंट्स इज लुकिंग. Yeah, and just don't be hesitant. कि आप अप्लाई करते रहो. Don't worry, रिजेक्शंस आते रहेंगे. ऐसे भी लोग हैं जो पिछले 4 साल से जो है वो ग्रेजुएट हुए हैं, वो ट्राई करते हैं, उनको नहीं मिलती जॉब. ऐसे भी हैं जिनको 4 साल करने के बाद मिल गई और अच्छी जॉब मिली है. और कुछ वो लोग हैं जिनको ग्रेजुएट होते ही तो जॉब मिली, लेकिन उसके बाद उनकी जॉब चली गई और उनको दोबारा जॉब नहीं मिली. तो आई मीन इट विल कम एट द राइट टाइम इन योर लाइफ. यू जस्ट कीप ऑन ट्राइंग. आपने डिमोटिवेट नहीं होना कि यार, क्योंकि यहाँ पे लोग अक्सर ये कहते हैं कि यार अच्छा जॉब नहीं मिल रही तो आप नर्सिंग कर लो, मतलब आप कोई और फील्ड कर लो, पैसे ले लो, चेंज योर प्रोफेशन. लेकिन अगर आपको अगर अपना प्रोफेशन पसंद है, जस्ट keep trying in that. That's what I would say. I think it's all about references as well. Connect with as many people as you can. Yes. You never know. और considering हमारा एडलेट बहुत छोटा है, यहाँ पे like if not second, हर तीसरा कनेक्शन जो है ना जानता है आपको. हर तीसरा बंदा जो है वो कोई ना कोई म्यूचुअल होता है आपका. बिल्कुल. So second, obviously आपका जॉब का आपने बताया, a part of that job कोई आप ऐसे साइड हसल या बिजनेस वगैरह आप कुछ कर रहे हो तो उसके बारे में बताओ या क्या. So I think 1-1.5 साल पहले ही जो है वो बड़ी पाकिस्तान में भी वेव आई थी फॉर ई-कॉमर्स. यस, हाँ. तो अभी भी चल रही है. अभी भी चल रही है. हाँ, नहीं, definitely. That wave hit me as well. Nice, really good. And then we started a small venture with my best friend in Pakistan. और हमने जो है we launched a छोटा सा store in Australia. Okay, nice. How's it going? It's okay. सही. Very good learning. Very good learning experience. Especially being a business student, I think it's amazing because you learn
so many parts of the business कि आप vendor से किस तरह deal कर रहे हो, you have to manage the finance of your business, you have to look after marketing of your business, and if you're hiring a virtual assistant, so it involves a bit of human resources as well. So you have to look at so many aspects. I think it's great exposure. और हमारे पास तो पाकिस्तान का फायदा भी है, human resource वहाँ से आप definitely freelance कर सकते हो. Exactly. और तो आप क्या challenges, if you can tell us, कि आपके क्या challenges थे जब आपका बिजनेस आप करने चाह रहे थे, या व्हाट वाज इट? चैलेंजेस यही थे कि मैंने स्टडी ज़रूर किया था स्टार्ट करने से पहले, बट इतना डीपली स्टडी नहीं किया था, विच आई थिंक आई शुड हैव. अच्छा, ओके, ठीक है. इतना स्टडी नहीं किया तो काफ़ी चीज़ें जो मैंने गलतियाँ की वो अवॉइड हो सकती थी, बट क्योंकि इतना स्टडी नहीं किया था और ऑलरेडी उस चीज़ में मैं जा चुका था, तो इट वॉज टू लेट. और ऑन द गो लर्निंग हुई, आई मेड मिस्टेक्स और मैंने सीखा उनसे, and I made sure I don't repeat them again. नहीं, that's good. But I think being in Australia, launching a store in Australia made it very easy compared to someone who's doing it from Pakistan or any other country. I believe. So because you have the IDs and everything. So yeah, banking it is easy. Everything is so easy. Like business, आपका नाम business में जब आपने लिया होगा business, obviously like ABN, कितने मिनट में बना होगा? Just हमारे viewers को बता दें. I think hardly 10 minutes. हाँ, that's how easy it is. That's how easy it is. और इसको हम वही बोलते हैं ना कि business में term होती है ease of business. वो बहुत है. वो बहुत है. तो आप you can focus more on your business rather than the legalities of your business. वो energy आप वहाँ लगा सकते हो अपनी. So yes, Amazon is a very very small side hustle, but it keeps me busy. नहीं, सही है. नहीं, realistically एक चीज़ पूछता हूँ. I don't know if I should ask this or not, but just curious. हम सब यहाँ पे बिजनेस करते हैं, ठीक है? तो जितना हम देखते हैं यूट्यूब पे, इन पे ये जो अमेज़न वाले होते हैं, एंड दे शो लाइक फरारीज एंड ऑल दैट लग्जरी लाइफ, आपको लगता है कि अमेज़न हैज़ दैट पोटेंशियल? आप काम कर रहे हो? यस एंड नो. इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. आप कौन सी कंट्री में काम कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या है, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं इसमें. यस, पीपल हैव मेड मनी, people have made a lot of money, but आप सिर्फ सक्सेस को क्यों देख रहे हो? फेलियर्स भी हैं. फेलियर्स भी हैं. बट आई बिलीव कि मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो अमेज़न के जो ट्रेनर्स हैं वो दे मेक मनी आउट ऑफ सेलिंग देयर कोर्सेज. हाँ, वो तो उनका है ही. हाँ, वेरी वेरी बिकॉज द लाइफस्टाइल दे शो. I don't know why, because I've also been doing business for 2 years now, and we know so many people who are running businesses here. So I don't know why, but मुझे रियलिस्टिक नहीं लगता 2 साल में आप मिलियंस ऑफ डॉलर का टर्नओवर करो जस्ट बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स. सो वेरी ट्रू. लेकिन आप हाउ कैन यू expect to earn millions of dollars when you've only invested $3,000 to $5,000? So it does need money to invest, right? Not like someone who's saying like sitting on YouTube and telling you that you don't need anything to start Amazon. आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा फॉर रिटर्न्स. You can't invest $5,000 and expect कि मैं 1 साल में जो है वो 1 मिलियन कमा लूँगा. There are exceptional cases, but specifically for Amazon मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है. मुझे भी. That's why I was asking you, because you are into it now. So सही. तो Amazon के अलावा और कुछ और ट्राई किया मेन स्ट्रीम, जैसे ई कॉमर्स, कोई अलग से कुछ और ट्राई किया? अभी तक नहीं. अभी तक ऐसा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया. मैं जो मैंने फर्स्ट 18 months या 20 months एविस में काम किया, तो वो तो मुझे काफ़ी बिजी रखती थी, बिकॉज रोटेटिंग रोस्टर्स थे और इस तरह था. तो और जब प्रमोशन हुई तो देयर वाज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोर वर्कलोड. सो उस पॉइंट पे तो मैंने कभी साइड हसल का सोचा भी नहीं था, बिकॉज इतना टाइम ही नहीं था मेरे पास. बट लेटर इन द स्टेजेस जब मैं वो रोल समझ गया था और गोइंग टू वर्क वाज इजी फॉर मी, बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वाज डूइंग. उसके बाद इजी हो गया था. देन आई स्टार्टेड searching for different options for a side hustle, and then Amazon came into being. सही. नहीं, साहिल will be wrapping up soon, but हमारे 3 questions हैं, ठीक है, जो हम हर किसी से पूछते हैं, हर गेस्ट. तो आपसे भी पूछेंगे. तो सबसे पहले तो ये बताएं कि if someone is watching you right now and he's sitting in Australia, sitting in Pakistan and he's planning to come to Australia, तो आप क्या सजेस्ट करोगे उसको? He should or he shouldn't, and why he should? Yes, 100% you should. But मैं इसको समराइज, पूरे ऑस्ट्रेलिया को अगर समराइज करूँ तो उस जर्नी में यही होगा कि ऑस्ट्रेलिया और मूविंग टू अनदर फॉरेन कंट्री,
it will knock you down at every point. Yes. You will face challenges, you will have a lot of problems, but all you need is that courage to get up and start and move again. It's okay if you fall down, it's okay if you face challenges, but just have the courage to face them and move ahead. बस खाना बना लेना. खाना बना लेना. मैं जब ऑस्ट्रेलिया आया था मुझे चाय बनाना भी नहीं आती थी. हाँ, so definitely, हाँ. मैं जहाँ रह रहा था उन्होंने मुझे बोला था पता ही नहीं था चाय कैसे बनती. उन्होंने मुझे बोला कि चलो आज, क्योंकि वो सब बहुत शौक से उन्होंने मुझे बोला कि यार चाय पीते हैं. मैं आज चाय मैं बनाऊंगा, क्योंकि वो इतने टाइम से बेचारे इतना सब ख्याल रख रहे थे. अब चाय उन्होंने बोला ठीक है बना लो. अब मैं किचन में गया तो मुझे तो चाय बनाना नहीं आती थी. तो वहाँ अम्मी को वीडियो कॉल की थी कि अम्मी चाय कैसे बनती है, चाय बनाना तो सिखाओ. बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, आई थिंक इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी. हर इंसान ने चैलेंजेस फेस किए हैं यहाँ पे, बट यू जस्ट नीड द करेज टू गेट बैक अगेन. आई बिलीव कि ये चैलेंजेस ज़रूरी थे. अब अगर आप फॉर सपोज लाइक हाइपोथेटिकली अगर आप कोई और कंट्री मूव करते हो तो आई बिलीव इट विल बी मोर लाइक इट विल बी इजियर फॉर यू. किसी को जानते भी नहीं हो तो फिर भी आपको लिए इजी हो जाएगा, राइट, है ना, बिकॉज नाउ यू नो कि हाउ टू सर्वाइव. बिल्कुल. बट द मेंटल स्ट्रेंथ इट गिव्स यू, मुझे लगता है कि इट्स छोटी छोटी चीजें तंग करती हैं यार. बिकॉज हमने पाकिस्तान में देखा है कि यूनिवर्सिटी लाइफ जो होती है वो आप जब आप यूनिवर्सिटी में होते हो तो यूनिवर्सिटी लाइफ ही आपकी लाइफ होती है. यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर डे इन यूनिवर्सिटी. एंड तो यहाँ के थोड़ा ये भी हो रहा था कि यार मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ शायद इतनी अमेजिंग नहीं है जितनी IBA अलम्स में होगी. क्या मैं इतने दोस्त नहीं बना रहा हूँ. बट आई थिंक बैक इन पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में यू मेक फ्रेंड्स फॉर दोज 4 years. बट मैंने उस टाइम में जो यहाँ पे दोस्त बनाया, मेड फ्रेंड्स फॉर लाइफ. आई थिंक विच इज द थिंग आई एम मोस्ट प्राउड ऑफ. दिस इज माई फैमिली. दिस इज फैमिली. एंड आई मुझे इतना मेरा ख्याल रखा गया हर चीज पे. सो दिस इज होम नाउ. नहीं बिल्कुल, डेफिनेटली. यस, आई मिस माय फैमिली. फैमिली इज फैमिली. और घर को तो कोई, इसलिए ही पाकिस्तान पसंद आता है. घर को तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. नहीं, बट कांट डू मच. ओके, सो एक और सवाल जो हम सब गेस्ट से पूछते हैं, आपसे पूछेंगे कि जब ऑस्ट्रेलिया आए थे, लैंड हुए थे, तो ऐसी क्या 3 चीज़ें थी जो आपको हेल्प की, या क्या करना चाहिए ऐसी 3 चीज़ें? नंबर 1 इज डू योर रिसर्च. क्या सीन है वहाँ पे, किस तरह जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, पढ़ाई करने जा रहे हो या कोई और मोटिव है. हैव क्लियर गोल्स इन माइंड एंड बी रेडी टू फेस चैलेंजेस. सही है. आई थिंक इफ ये तीनों चीज़ें आपकी टिक हैं बॉक्स में, you're good to go. सही है. That's good. सही. तो ये बताएंगे, अभी आपको लोग सुन रहे हैं, हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी सुन रहे होंगे, बाकी भी इमिग्रेंट्स होंगे, एंड देयर विल बी मैनी फ्रॉम योर फील्ड. तो अगर कोई आपको अप्रोच करे किसी तरह, तो आप किस तरह उनकी हेल्प कर सकते हैं? वी कैन शेयर योर डिटेल्स इफ़ यू वांट, और दे कैन रीच अस आउट. बट आप किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कम्युनिटी के लिए? यार, सो I'm all in for help. I think it's a chain. मैं जब आया था मेरी भी लोगों ने हेल्प की थी, स्टिल कर रहे हैं. And I'm more than happy to help. जितना मैं कर सकता हूँ, even out of my comfort zone, I'll be more than happy to help. Especially if you're asking about my field, I can help you with your uni, with your career goals. जितने मेरे जो references हैं to help you get a job in any way possible, I'm all in for help. Thank you so much for that. Thank you so much, Sahil. It was wonderful talking to you. Thank you for having me. Thank you so much for having me. See you next time, inshallah. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, guys. Allah Hafiz.